Again we'll start our class with this pledge. So let us take the pledge with me. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes class, we were doing lesson number 2 from history part and we were discussing factors leading to the nationalism. So today we will discuss last factor which is leading to the nationalism. Role of modern means of transport and communication. It's a main factor to lead the nationalism. So introduction of railway in 1853 revolutionized the socio-economic life of the people. तो रेलवे जो स्टार्ट हुई 1853 से उसने एक रेवोल्यूशनाइज्ड चेंज लेकर आए people की लाइफ में. It enabled people to take long distance travel and thereby breaking geographical and cultural barriers. तो इसके साथ क्या हुआ, लोग जो थे दूर दूर डिस्टेंस तक जाने के लिए सक्सेस हो गए, वो लॉन्ग डिस्टेंस पर जा सकते थे और जो जोग्राफिकल बैरियर थे, कल्चरल बैरियर थे, वो ख़त्म हो गए. मीन्स जोग्राफिकल दूर दूर तक जा सकते थे थ्रू टू रेल्स एंड कल्चरल बैरियर्स. तो एक दूसरे के इन टच आकर दूर दूर जाकर एक दूसरे से मिलकर तो वो उनके कल्चरल बैरियर्स भी वो कि एक कल्चर वाला दूसरे कल्चर के पास जाता था तो वो कल्चर बैरियर्स भी दूर हो रहे थे. टेलीग्राफ पोस्टल सिस्टम प्रूव्ड हेल्पफुल टू ऑर्गेनाइज एन ऑल इंडिया मूवमेंट. तो टेलीफोन पोस्टल सिस्टम ने भी हेल्प की ऑल इंडिया मूवमेंट में. प्रिंट ऑफ न्यूज़पेपर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेकनिंग इन द पीपल. न्यूज़पेपर जो प्रिंट होने लगे उन्होंने भी अवेकनिंग की पीपल की. न्यूज़पेपर रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिस रूल एंड इनकरेज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़. तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो आने लगी जो हमारे ऊपर जो थे ब्रिटेन के ब्रिटिशर्स, उन्हों के मिस रूल के बारे में न्यूज़पेपर में रिटर्न में आने लगा तो उसने लोगों को इनकरेज किया नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए. प्रेस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट मीडियम टू popularize political programs, policies for various organizations like Indian National Congress which were involved in freedom struggle. तो प्रेस क्या हो गई, एक मीडियम बन गया, लोगों में पॉपुलर हो गया पॉलिसीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए जो इन्वॉल्व हो गया फ्रीडम स्ट्रगल में. प्रेस ब्रॉट द इंडियन पीपल क्लोज टू अदर कंट्रीज. तो प्रेस सारी कंट्रीज़ को पास ले आया. In India, the growth of the press started early in the 19th century and played an important part in the national awakening of the people. So, the first newspaper in India was the Bengal Gazette, which started in 1780. However, the real development of the press came early in the 19th century. Raja Ram Mohan Roy started 2 papers, Sambad Kamudi in Bengali and Miratul Akbar in Persian, which were devoted to propagating the case for social reforms. Many other national leaders and social reformers were also associated with the growth of the press in India. Dadabhai Naoroji edited Rast Goftar and Ishwar Chandra Vidyasagar started Shome Prakash in 1890 एंड इंग्लिश वीकली में कुछ और रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने अपनी रिटर्न लिखा इन्होंने अपनी बुक्स में. द इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स वर स्टार्टेड इन बॉम्बे टू प्रोपेगेट सोशल रिफॉर्म्स. तो जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में, उसने भी सोशल रिफॉर्म्स को प्रोपेगेट किया.
In the second half of the 19th century, many English dailies were started. Many of these are still among the popular newspapers in India, like the Times of India started in 1861, the Pioneer in 1865. ये कुछ न्यूज़पेपर थे और भी आ गए डेली आने वाले, जिन्होंने लोगों में क्या किया, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको पैदा किया. नेक्स्ट वी हैव a role of some great social reformers. In this role, first one is the social reformer is Raja Ram Mohan Roy and the Brahmo Samaj. Raja Ram Mohan Roy 1772 to 1833 AD. Raja Ram Mohan Roy was the first great social religious reformers of the 19th century. 19th century का सबसे फर्स्ट ग्रेट रिफॉर्मर्स था ये. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस. इंडिया में जो रेनेसांस आया, चेंज आया, डेवलपमेंट्स हुआ, उसके फादर इन्हें माना जाता है बिकॉज ऑफ हिज आइडियाज़ एंड पायनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स. रिलीजियस रिफॉर्म्स कौन से थे जो इन्होंने किए? टू प्यूरिफाई द हिंदू रिलीजन, राजा राम मोहन रॉय पब्लिश्ड बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द वेदास एंड उपनिषदास. तो इन्होंने क्या किया, जो ऋग्वैदिक टाइम के जो वेदास थे उनका और उपनिषदा का ट्रांसलेशन की इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में. इन दिस वे ही प्लेस द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ दीज स्क्रिप्चर्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. ही फाउंडेड द ब्रह्मो सभा फाउंड की इसने इन 1828 में. ही एडवोकेटेड बिलीफ इन यूनिवर्सल रिलीजन बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ वन सुप्रीम गॉड. तो रिलीजन यूनिवर्सल रिलीजन बेस्ड थे और एक गॉड को मानने में विश्वास करते थे. ही अपोज आइडल वर्शिप को ये इसके अपोज थे. यूजलेस राइट्स एंड रिचुअल्स एंड कॉस्टली सेक्रीफाइसेस. तो यूजलेस जो राइट्स एंड रिचुअल्स है जो धर्म को लेकर है उनके अगेंस्ट थे, उसे यूजलेस मानते थे. एंड कॉस्टली सेक्रीफाइसेस, जो कॉस्टली सेक्रीफाइसेस होते थे, महंगे जो रिचुअल्स थे उनके अपोज थे. ही ऑल्सो कंडेम्ड ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशंस. ब्लाइंड फेथ किसी भी चीज़ के ऊपर और सुपरस्टिशंस वहम भरमों के ये विरोध करते थे. ही अपोज अनटचेबिलिटी एंड द रिजिड कास्ट सिस्टम प्रिवेलिंग इन हिंदू रिलीजन एंड सोसाइटी. राजा राम मोहन रॉय advocated equality and brotherhood of all men. He stood for respect of all religions. Next, social reforms of Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy's greatest achievement in the field of social reforms was the abolition of evil of sati in 1829 with the help of Lord William Bentinck. सती का जो evil उसको ख़त्म किया. Who made it a crime punished by law. तो ये एक क्राइम बन गया लॉ के सामने, ये सती पर था. ही एडवोकेटेड द कॉज ऑफ वीमेन एजुकेशन. ही वॉन्टेड वोमेन टू बी गिवन द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. तो इन्होंने कहा कि जो वीमेन है वो प्रॉपर्टी में हकदार होनी चाहिए. ही डिज़ायर्ड दैट वीमेन शुड ऑक्यूपाई अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी. ही वॉज अपोज टू पॉलीगमी. बहुत ज़्यादा मैरिजेस में, बहुविवाह में ये के भी अगेंस्ट थे. चाइल्ड मैरिज के एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड के भी ये अपोज करते थे. ही फेवर्ड विडो रीमैरिज लीगलाइज्ड इन 1856 एंड इंटरकास्ट मैरिज. तो इन्होंने क्या किया, विडो रीमैरिज को भी लीगलाइज्ड किया कि होनी चाहिए एंड इंटरकास्ट मैरिज को भी इन्होंने फेवर की. राम मोहन रॉय लेड द फाउंडेशन ऑफ एन इंग्लिश स्कूल, द हिंदू कॉलेज एंड द वेदांता कॉलेज. इन्होंने 2 स्कूल्स की फाउंडेशंस रखी, इंग्लिश स्कूल and the Hindu college and the Vedanta college. The ideas and the work of Brahmo Samaj. जो ब्रह्मो समाज की इन्होंने फाउंडेशन रखी थी उनका क्या वर्क था. द ब्रह्मो समाज condemned evil customs like sati, parda, child marriage, forced widowhood, polygamy, female infanticide and discrimination against women. We have discussed all these points in these also. The Brahmo Samaj began a struggle against the caste distinction प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग द इवल ऑफ अनटचेबिलिटी. तो कास्ट सिस्टम जो चल रहा था कि ये छोटी कास्ट है बड़ी कास्ट है, उसके भी अगेंस्ट था ये ब्रह्मोसवाद, और इवल ऑफ अनटचेबिलिटी के भी
A against 3. The Brahmosmas stood for the spread of education of modern subjects as well as English language in the schools so that the Western education could come within the reach of Indian students. तो इंग्लिश एजुकेशन की फेवर में थे ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स वो इंग्लिश एजुकेशन ले पाए. The Brahmosmas opened many schools. The Brahmosmas believed this in only one God who is the creator and sustainer of the universe. एक ही गॉड पर ये बिलीव करते थे. The Brahmosmas respected all religions and advocated that all religions were equal and alike. It brought about a synthesis in the philosophy of Upanishads, ethical teachings of Islam and humanism of Christianity. The Brahmosmas applied a rational approach towards religion, so it was opposed to blind faith, irrational superstitions, useless rituals, rites and sacrifices. Next, role of the Jyotirao Phule. Jyotirao Phule was an activist, thinker, social reformer and revolutionary from Maharashtra. कहाँ से थे? From Maharashtra. His remarkable influence was apparent in fields like education, agriculture, caste system, women and widow upliftment and removal of untouchability. He is most known for his efforts to educate women and the lower caste as well as the masses. In 1873, Jyotirao formed Satya Shodhak Samaj, Society of Seekers of Truth. The main objectives of the organization were to liberate the Shudras and Ati Shudras and to prevent their exploitation by the upper caste like Brahmanas. तो ज्योतिबा फूले ने क्या किया? सत्याशोधक समाज फॉर्म किया. इसका मीन्स है सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ, सच का साथ देने वाले लोगों की सोसाइटी. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो अपर क्लासेस है लाइक ब्राह्मण्स जिनको बड़ी ऊंची कास्ट वाले माना जाता है कि उसकी तरफ से जो छोटी कास्ट मानी जाती थी जिनको छोटी कास्ट वाले बोला जाता था शूद्रास और अति शूद्रास, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो. ठीक है, उनको equal space मिले. He opposed idolatry and denounced the caste system, rejected the need for a Brahman priestly class as educational and religious leaders. तो इन्होंने भी क्या किया? जो आइडल वर्शिप है उसके अगेंस्ट थे. कास्ट सिस्टम, रिजेक्ट द नीड ऑफ ब्राह्मण प्रीस्टली क्लास, जो ब्राह्मण प्रीस्टली क्लास हेरिडिटेटरी चल रही थी उनके भी अगेंस्ट थे. ज्योतिराव फैमिली बिलीव्ड, इनका बहुत ज़्यादा बिलीव था इन अ न्यू सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन फ्रीडम, कि ऐसा सोशल सिस्टम होना चाहिए फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, ह्यूमन डिग्निटी, इकोनॉमिक जस्टिस एंड वैल्यू डिवोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, ह्यूमन डिग्निटी, इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर बेस्ड हो. फुले हैड अ फेवरेबल ओपिनियन अबाउट द बर्थ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज at least from the point of view of introducing modern notions of justice and equality in Indian society and taking India into the future. Next, our content is only up to this much. We'll discuss another content in the next class. With this, goodbye to all of you.